हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रेस क्लासेस। आज हम आपको 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन मैथमेटिक्स इन क्लास 10 का सेशन शुरू कर रहे हैं। इट मीन्स जो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज 10th क्लास अकॉर्डिंग टू द pattern of the question paper which sent by the CBSE board for this year 2026 in new pattern. So according to the new sample paper, model paper which sent by the CBSE board this year 2026 in 10th class NCERT मैथमेटिक्स CBSE सिलेबस। अकॉर्डिंग टू दिस आज हम क्या कर रहे हैं, सेशन शुरू कर रहे हैं 10th का। 12th का सेशन हमने शुरू किया हुआ है। 12th के सेशन में चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक हो गया है चैप्टर वाइज। आज ये 10th क्लास में चैप्टर 1 एंड 2 शुरू किया है। दो चैप्टर का हम कंबाइंड रखते हैं। ओके, तो इनमें दो चैप्टर जो आपके हैं रियल नंबर एंड पोलिनोमियल इन 10th क्लास, फर्स्ट टू चैप्टर्स। तो नो अकॉर्डिंगली दिस यू नो दैट in the real number everything you know, rational and irrational. Rational means which can be written into a upon b form and a and b and integer and not a co-prime है and co-prime. A and b are co-prime. Co-prime में no common factor except one in a and b. तो like this, if 21 upon 15 है तो this is not standard form of the rational number. 21 upon 15 is equivalent rational number, but rational number purely simplest form we have to use, okay, because 3 से divisible है तो common factor नहीं होना चाहिए। को-प्राइम दो नंबर वही है जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, अदरवाइज ये को-प्राइम नहीं है। ओके, तो 15 and 21, 3 is a common factor, so these are not co-prime. ओके, वी कैन से जैसे 15 है आपका, 16 है, ये को-प्राइम है। 15 and 16 नो कॉमन फैक्टर। ओके, सो you be careful about the rational number and irrational. After that, LCM, HCF, LCM and HCF, fundamental theorem in mathematics, fundamental theorem in arithmetic mathematics. What is that? Every composite number which has composite number also definition, many definitions are there. Which composite number कौन सा है? Which number has more than 2 factors? Exact 2 factor नहीं, more than 2 factors. Clear? That are co-prime, sorry, that are composite number. So first composite number is 4. What is first composite number? 4. Second composite number, more than 2 factor, 6. Third composite number 8. Fourth composite number 9, and so on. You can see any more than 2 factor. जैसे 9 है, it is divisible by 3 and 1 and itself 9. 3 से, 9 से and 1 से। जैसे 2 है तो 2 तो 1 से and 2 से है। 3 है 1 and 3 से है। These are not composite number. So first composite number is 4 and first prime number, you know prime number, every number you should know that. Prime number you know, सब किया हुआ है। Prime number, which are prime number? Which are divisible by 1 and itself only, that are prime number. 1 and itself. अब 1 and itself है, so first prime number 1 है या 2 है? What is first prime number? 1 और 2? 2 फर्स्ट प्राइम नंबर है, 1 क्यों नहीं है? क्योंकि 1 and itself कह रहे हैं डेफिनेशन में, 1 से भी होना चाहिए itself भी।
तो एंड कहाँ है, अलग अलग है, तो वहां वन एंड इट सेल्फ भी वन, सो वन इज नॉट प्राइम नंबर. फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2. You should know, keep in your mind. Okay, so like this, you know many numbers are there. Co-prime हो गया, composite number, even odd number, you know that prime number. Okay, sum of prime number, first and that you know. Now LCM and HCF, fundamental theorem in arithmetic. Fundamental theorem क्या है? Every composite number has its prime factors unique. कोई भी कंपोजिट नंबर जो हमने बताया आपको अभी, ये जो मोर देन 2 फैक्टर्स बताए हैं, तो इनमें प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, रिपीट नहीं होगा. किसी एक ही नंबर के यूनिकनेस है, एक ही होंगे, वन एंड ओनली वन. यूनिक मीन्स जैसे 2 पावर 3 इंटू 5 इंटू 7 पावर 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. ओके, लाइक दिस. तो इनको ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, इंक्रीजिंग प्राइम नंबर्स ऑर्डर में, 2 5 7 ऐसे लिखते हैं. बस इनको उल्टा लिखा हुआ है तो भी कोई बात नहीं है, एक ही होंगे, वो सेम माने जाएंगे, इसलिए यूनिकनेस है. कोई भी प्राइम फैक्टर्स होने हैं किसी नंबर के, यूनिक होंगे. यूनिक का मतलब कोई और प्राइम फैक्टर्स नहीं बनेंगे, वही बनेंगे, फिक्स बनेंगे. ठीक है, ओके. आफ्टर दैट एलसीएम एंड एचसीएफ, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यू नो, हाईएस्ट एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब फैक्टर एंड द मल्टीपल्स में डिफरेंस पता होना चाहिए. फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स मीन विच डिवाइड्स द नंबर, विच डिवाइड्स द नंबर, जो नंबर डिवाइड कर देते हैं, नंबर को डिवाइड कर देते हैं, दैट आर द फैक्टर. जैसे 1 से डिवाइड हो गया, 2 से भी डिवाइड हो गया, 3 से भी डिवाइड हो गया. कौन? 6 लिया अगर हमने. 1 is the factor, 2 is the factor, 3 is also one factor and itself 6 also one factor. तो जैसे 6 लिया तो 6 नंबर कंपोजिट नंबर है, कितने फैक्टर हुए? अब इसमें 1 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, इटसेल्फ हो गया, और दूसरा 2 एंड 3, तो 4 बन गए. तो मोर देन 2 होने चाहिए, अगर 3 बन गए तो कंपोजिट नंबर है. ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ प्राइम नंबर, एंड 2 से ज्यादा बन गए, तीन फैक्टर प्राइम फैक्टर्स हो गए, दैट डन. प्राइम फैक्टर्स चाहिए हमें, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि 1 तो सभी में होगा, इसलिए 1 छोड़ दिया गया है, इसलिए प्राइम फैक्टर्स कहा गया है, यूनिकनेस. तो नाउ हियर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 6. अब 6 के मल्टीपल क्या होंगे? 6 divides to the other numbers, which numbers divisible by 6, that other all numbers are called the multiple of 6. 6 divisible by 6, 12 divisible by 6, 18 divisible by 6. So 6, 12, 18, 24 and so on. These are the composite number of 6 and factors of 6, 1, 2, 3 and 6. These are the factors. So you should know that. So now LCM and HCF. Now we have to do one question. Okay. Depend on LCM and HCF. You will recognize. You will think it will be LCM or HCF. Lowest common multiple है या highest common factor. लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, मल्टीपल जो बताए मैंने 6 के उनमें, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो फैक्टर किए उनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. तो नाउ हियर द 3 bells, क्वेश्चन 1, 10th क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 3 bells ring at 8:30 AM. if यदि टुगेदर एंड, ये टुगेदर इकट्ठी बजती हैं, एंड अगेन एट 8:30 पे इकट्ठी बजती हैं, एंड अगेन इट्स रिंग आफ्टर 12, 15 एंड 18 मिनट्स रेस्पेक्टिवली. ये तीनों बेल दोबारा जो बजती हैं, अगेन दोबारा, पहली बेल 12 मिनट के बाद, दूसरी बेल 15 मिनट के बाद, तीसरी बेल 18 मिनट के बाद बजती है, एंड सो ऑन.
और इस तरह से फिर ये बजती रहती है। When and after how many time? When का मतलब कब, वो टाइम बताना है किस टाइम पर, एंड आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स, और कितने समय बाद। दे विल रिंग टूगेदर, वे तीनों बैल इकट्ठे बजेंगी। फाइंड दैट आल्सो ईच बैल हाउ मेनी टाइम विल रिंग इन दिस टाइम इंटरवल। जो ये टाइम इंटरवल आया दोबारा बजना, कितनी देर बाद बजेंगी दोबारा, इस इंटरवल में ईच वन, फर्स्ट बैल भी, सेकंड भी, थर्ड भी, कितने बार बज चुकेंगी, ये भी फाइंड करना है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन सॉल्यूशन। नाउ अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, मल्टीपल पर है डिपेंड। ये 12 मिनट के बाद फिर 12 टू जा 24 मिनट के बाद फिर 12 थ्री जा 36 मिनट के बाद बजेगी, ऐसे बजती रहेंगी। ये बजेगी 15 मिनट के बाद, फिर 15 टू जा दूसरी बार, 30 मिनट के बाद तीसरी बार, 15 थ्री जा 45 मिनट के बाद, इस तरह से ये बजती रहेंगी एंड सो ऑन 18 आल्सो सिमिलरली। तो नाउ हियर क्वेश्चन अराइज दैट कि ये इस तरह से 12, 15 एंड 18 मिनट के बाद बज रही है, इकट्ठी कब बजेंगी, यानी इनका कॉमन मल्टीपल। अंडरस्टैंड, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, उतने मिनट के बाद दो तीनों इकट्ठी बजेंगी, ये अंडरस्टैंडिंग है। 12, तो 12, 15 एंड 18 का जो कॉमन मल्टीपल है, पहला कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, इसलिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहा गया है। आगे फिर कॉमन मल्टीपल आएगा, तीनों बैल फिर दोबारा तिबारा फिर इकट्ठी बजेंगी। तो इसलिए एलसीएम जो है यहाँ एक पॉइंट निकाला गया जो कि फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है, पहला कॉमन मल्टीपल इन तीनों इंटरवल में, तीनों टाइम में, तीनों नंबर्स में। तो 12, 15 एंड 18 का एलसीएम निकालेंगे। ओके, तो सॉल्यूशन एलसीएम, एलसीएम हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। ओके, हमें तो एलसीएम निकालना है। तो 12, 15, 18 एलसीएम निकाल रहे हैं किसी भी मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। किससे डिविजिबल कर दो, 2 से पहले। 2 6 जा 12, 2 से 15 डिविजिबल नहीं है एज इट इज, 2 से 9 जा 18। ओके, आफ्टर दैट 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 से डिविजिबल हो गई, तीनों में कॉमन आ रहा है 3। अब ये एक बार 2 से, एक बार 5 से, ओके, और एक बार 3 से, ये प्राइम फैक्टर हो गए, 2 भी 5 भी 3 भी। तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, दिस इज द एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ, सॉल्यूशन बन गया, एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 18 लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इनका तीनों का क्या बना है, ये बन गया 2 की पावर 2 एंड 3 पावर 2 इंटू 5। 2 2 टाइम्स है, 2 पावर 2 है। ओके, एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, 3 3, ये भी 2 टाइम्स है, 3 इंटू 3 3 स्क्वायर, एंड देन 5 सिंगल टाइम, 5 पावर 1। सो दिस इज एलसीएम। तो कितना बना, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 इंटू 5 पावर 1 5, तो 180। 180 क्या है ये, यूनिट क्या है इनकी, मिनट। ये नंबर 12 मिनट 15 मिनट्स, ठीक है। तो 180 मिनट के बाद में इकट्ठी बच जाएंगी फिर। तो क्वेश्चन आ गया, आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स, आंसर। तो आफ्टर यू कैन राइट, आफ्टर 180 मिनट मीन्स 3 आवर्स, 180 minute means 3 hours. After 3 hours,
दे विल रिंग टुगेदर, दे विल यानी तीनों बैल, दे विल रिंग, इस टाइप का क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। रिंग टुगेदर अगेन, टुगेदर अगेन, ठीक है, वो दोबारा इकट्ठी 3 घंटे बाद बजेंगी, पहला आंसर। दूसरा, व्हेन, एट व्हाट टाइम, शुरू का टाइम 8:30, तो 8:30 में 3 आवर ऐड कर दो, एंड एट कितने बजे, एंड एट 8 + 3 11, 11:30 पर, एंड एट 11:30, एट 11:30 AM, वैन पूछा है तो वैन का आंसर मिल गया एट 11:30 AM। ओके, फिर एक आंसर और पूछा है क्या, ईच बेल हाउ मेनी टाइम विल रिंग इन दिस इंटरवल, 3 घंटे में के पीरियड में कितनी बार हर एक बेल बजेगी। फर्स्ट बेल कितने टाइम बजेगी, हाउ मेनी टाइम, 12 मिनट से डिवाइड कर दो 180 मिनट को, तो 12 × 1 = 12, 180 मिनट को 12 मिनट से, ओके, 12 × 1 = 12, 18 - 12 6, 60, 12 × 5 = 60, टाइम 15 टाइम, कितने बार, 15 टाइम्स, तो ये फर्स्ट बेल, सेकंड बेल कितने टाइम्स बज जाएगी, 15 से डिवाइड करो 180 को, 15 × 1 = 15, एंड देन 3 0 30, 15 2 = 30, तो 12 टाइम्स, एंड थर्ड बेल हाउ मेनी टाइम विल रिंग, 18 से डिवाइड करो 180 को, देन 10, ये 10 बार बज जाएगी, 10 टाइम्स, इस इंटरवल में ये 10 टाइम्स बज जाएगी। दीज आर द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो दिस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे जो कि इस पर डिपेंड होंगे। ओके, तो ये फिनोमिना, ये आपका एक मेथड, ये आपका एक पैटर्न ऑब्जर्व करने की एक आपके पास क्षमता होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पावर इंक्रीज करना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, मल्टीपल्स, रिपीट अगेन एंड अगेन, कॉमन मल्टीपल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2, दिस also on LCM and HCF. If LCM of xy square and x square y, ये 2 नंबर्स हैं, एक्स वाई स्क्वायर एक नंबर एंड दूसरा एक्स स्क्वायर वाई, इज 120, अगर इनका एलसीएम 120 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ HCF एंड x एंड y वैल्यू आल्सो फाइंड, इंपोर्टेंट। सो अब इनके फैक्टर करो आप, हमें एलसीएम पता है, एलसीएम का मीनिंग क्या है, एक्स वाई स्क्वायर कोमा एक्स स्क्वायर वाई, इनके फैक्टर्स करो। क्या फैक्टर बनेंगे इसके, तो बन गया x × y
इंटू वाई। ओके, ये बन गए। और इसके क्या बन गए? x इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये बन गए। तो इनमें आप एलसीएम जो होता है, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम इज इक्वल टू, अब देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स की यहाँ 2 पावर है, यहाँ एक्स की 1 पावर है, तो एक्स की 2 पावर यूज होगी। एलसीएम हमारा बन गया एक्स पावर 2, एंड वाई यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो वाई पावर 2। ये हमारा क्या बन गया? एलसीएम। भाई इसके फैक्टर हो गए एक्स पावर 1 वाई पावर 2, यहाँ एक्स पावर 2 वाई पावर 1, तो हाईएस्ट पावर लेनी है। ठीक है, तो ये बन गया आपका एक्स पावर 2 वाई पावर 2। तो दिस वैल्यू आपके पास कितनी है? 120 गिवन। ओके, इट इज गिवन। अब कॉमन फैक्टर एचसीएफ क्या है? अब एचसीएफ देखिए आप, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दीज बोथ, तो यहां एक्स एंड एक्स कॉमन, और इसमें हाईएस्ट वाई कॉमन, तो एक्स इंटू वाई। ये क्लियर कर लें। ठीक है, तो नंबर को चेंज करके हमने ये क्वेश्चन तभी सेट होगा। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन 120 इफ देयर, देन स्क्वायर रूट में वैल्यू आएंगे एक्स की भी वाई की, वो नेचुरल नंबर नहीं आएंगे। ओके, वी वांट द नेचुरल नंबर ओनली। तो लाइक दिस क्वेश्चन इन योर सिलेबस, otherwise method okay, then this can be written 3 square into 5 square. This is your x square y square। तो कंपेयर किया तो x एंड y, x इज इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5। ओके, दिस इंप्लाई, एंड HCF कितना आ गया? XY, तो HCF इज इक्वल टू HCF 3 इंटू 5 15। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 आंसर if LCM is 225, and then x and y value 3 and 5. So like this question, you be careful about the identity. Algebraic identity use होंगी, means ये ध्यान रखना है, and the concept of HCF and LCM done. Okay, next question. हाँ यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। अब देखिए क्वेश्चन है कि प्रूव दैट इरेशनल नंबर, प्रूव दैट 3 माइनस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इस टाइप के a प्लस माइनस रूट b, a प्लस माइनस, ओके, रूट b। अब उसमें कोई भी इस टाइप का नंबर, तो इस टाइप के प्लस हो यहाँ या माइनस हो, आपको ये प्रूव करना है। तो इसमें क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो इसको लेट, वही लेट करेंगे, लेट ये रेशनल है, 3 माइनस 2 रूट 5 इज रेशनल। हमने इसको मान लिया कि रेशनल है। ओके, रेशनल, लेट
दिस इज रेशनल। अब रेशनल है, सो दिस इंप्लाइज, अब जब ये रेशनल है सो दिस वैल्यू must be equal to, it must be reduced, it must be written into a upon b for where a and b are any integer except b not 0 and a and b are coprime. A comma b are integers, ठीक है, are integers, b not equal to 0, b not equal to 0 and coprime. A comma b are कोप्राइम, ठीक है, आर कोप्राइम, ओके, कोप्राइम। ओके, अब ये डेफिनेशन पूरा लिखना है। अब इसका मीनिंग क्या है आफ्टर दैट, कि नेगेटिव इधर ले लो, पॉजिटिव इधर ले लो नंबर के साथ, ये 3 इधर है, शिफ्ट कर लो उसको, माइनस ए अपॉन बी ले लो यहां, ये आपका उधर पॉजिटिव है ए अपॉन बी, इधर नेगेटिव ए अपॉन बी ले लो, ओके, एंड इज इक्वल टू जो आपका नेगेटिव 2√5 है उस साइड चला जाएगा, पॉजिटिव 2√5, ओके। आफ्टर दैट क्या करो, एलसीएम लेके सॉल्व करो इसको, 3b माइनस a डिवाइड बाय b एलसीएम इज इक्वल टू 2√5, ठीक है, रूट वाली टर्म एक साइड करके हमने ऐसे किया। अब 2 से डिवाइड, तो इट मीन दिस विल बी 3b माइनस a डिवाइड बाई, अब 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो 2b इज इक्वल टू √5। स्टैंडर्ड मेथड रूट नंबर एलोन, ये डेफिनेशन में यूज कर लो, ठीक है। इट इज फैक्ट दैट, लिखो, इट इज फैक्ट दैट √5 इज ए, it is fact that √5 is an irrational, √5 is an irrational, ओके, ये हमें मालूम है, फैक्ट है, irrational and this is rational, and LHS means 3b minus a divide by 2b is rational, ये कंट्राडिक्शन हो गया, ठीक है। अब ये जो नंबर LHS इक्वल टू RHS है, इक्वेशन 1, यहां से क्लियर हुआ, एक तो इरेशनल है, ये रेशनल हो गया,
अब वो फैक्ट है, उसे तो हम झुटला नहीं सकते √5 को, तो इसलिए सो इट इज कंट्राडिक्शन, सो इट इज कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन आ गए, इट इज कंट्राडिक्शन, ये लिखना है यहाँ पर, इट इज कंट्राडिक्शन। ओके, ये कंट्राडिक्शन हो गया कि एक साइड रेशनल एक साइड इरेशनल होना नहीं चाहिए, तो दोनों सेम होने चाहिए। 10 अवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, 10 जो हमने माना वो गलत है, 10 अवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, जो हमने माना है, लेट अस सपोज our supposition is wrong, our supposition is wrong, वो गलत है। अब वो गलत है ये हमने कर दिया प्रूव, तो इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमने लेट किया है ये रॉन्ग है, तो इसलिए ये क्या है, ये इरेशनल हो गया। देयरफॉर ओके, देयरफॉर जो नंबर हमारा है 3 माइनस 2√5, 3 minus 2√5 is irrational, is irrational। ओके, इरेशनल हो गए, डन, प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ये हमें प्रूव करना था, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ यस बेटा, पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स यू नो, है ना। तो अब बताइए, क्वेश्चन है व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ px इज इक्वल टू 0। एक पोलिनोमियल है px इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस एंड व्हाट इज द नेम। अगर नेम पूछूं मैं इसका, 0 डिग्री पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल क्या कहेंगे इसको, या कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या कहेंगे। 0 है एनी रियल नंबर दिस 0, तो दिस इज द 0 पोलिनोमियल। नेम इसका क्या होगा, नेम 0 पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं है इसका नेम। तो बहुत सारे नेम दिए होंगे, ऑप्शन क्वेश्चन बन सकता है। द नेम ऑफ द polynomial px equal to 0 is A option constant polynomial, B option linear polynomial, C option 0 polynomial, D option none of these। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं है ना, नन ऑफ दीज है, ये पोलिनोमियल है, और कौन सा, 0 पोलिनोमियल। एंड व्हाट इज द डिग्री, तो डिग्री ऑफ दिस बताइए, डिग्री डिग्री ऑफ दिस नॉट डिफाइंड। ओके, नॉट डिफाइंड, इस पर भी ऑप्शन क्वेश्चन बन सकता है। नॉट डिफाइंड,
क्यों नहीं है डिफाइंड इसकी? क्योंकि यहाँ पर इसको हम x पावर 1 भी लिख सकते हैं, x पावर 0 नहीं लिख 0, x पावर 0 भी लिख सकते हैं, x पावर 1 भी लिख सकते हैं, x पावर 2 भी लिख सकते हैं इंटू में, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। तो 0 मीन्स 0 कैन बी रिटन इंटू many numbers with multiply x power 0, x power or x power 1 or x power 2 or x power 3. तो highest power we can't say here x in this. बहुत सारी बनेंगी, तो don't define. That's why. Answer. Important question. Name of, अगर इसी में name पूछा जाए तो what is the name of this? 0 polynomial. What is the name? 0 polynomial. Okay. Question 2. इसी में if px is equal to एनी नंबर दे दिया मैंने -12 ये दे दिया, तो व्हाट इज द डिग्री? डिग्री बताओ, इसके नेम बताओ। व्हाट इज द डिग्री? व्हाट इज द नेम? डिग्री ऑफ दिस 0 डिग्री, ये 0 डिग्री होगा। एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 0 इज द 0 डिग्री पॉलिनोमियल। ये 0 डिग्री, कितनी डिग्री इसकी? 0। और नेम इसका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट। नेम इसका क्या बन गया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बी केयरफुल। Important this question also. Okay, so you should know these. Yes. Now this question number 3. Next question. What is that? Which are not polynomial? Question is which are not polynomial in the following first, second, third, fourth, fifth. कौन कौन से इनमें पोलिनोमियल नहीं है पूछा है, तो कौन है बताओ? फर्स्ट पार्ट √3x, सेकंड में 2/√5x प्लस √3, थर्ड √x - 3, फोर्थ 2/x प्लस 3x, फिफ्थ -3/√7x स्क्वायर माइनस √5x माइनस 2√3। कौन कौन से इसमें पार्ट में पोलिनोमियल दिए हुए वो नहीं है पोलिनोमियल? तो फर्स्ट पोलिनोमियल है या नहीं? ये है पोलिनोमियल है, सेकंड पोलिनोमियल है, थर्ड नॉट पोलिनोमियल। थर्ड पार्ट √x - 3, फोर्थ पार्ट, फोर्थ देखो 2/x प्लस 3√x, 2/x प्लस 3x, ये भी नहीं है। फिफ्थ यस है। तो दीज टू पार्ट थर्ड कोमा फोर्थ दिस आर नॉट पोलिनोमियल, अदर पोलिनोमियल है। आर नॉट, ये पता होना चाहिए, आर नॉट पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल नहीं है, ये है क्योंकि इसमें क्या है? x पावर, x की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब पावर 0 या 1 2 3 4 5 नॉन नेगेटिव इंटीजर।
तो यहां पर ये पावर इसमें 1 है, इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 1/2 बन रही है x की। दैट्स वाई दिस इज नॉट पोइनोमियल। इसमें x डिनोमिनेटर में है तो पावर ऊपर जाकर -1 बनती है, तो इसलिए दिस इज नॉट द पोइनोमियल। एंड दिस power x power 2, x power 1 and constant this x power 0, then okay, this is quadratic polynomial। तो ये पोइनोमियल है। और ये लीनियर पोइनोमियल, ये भी लीनियर, फर्स्ट सेकंड लीनियर, फिफ्थ क्वाड्रेटिक एंड थर्ड एंड फोर्थ आर नॉट पोइनोमियल। यू शुड नो लीनियर पोइनोमियल, क्वाड्रेटिक पोइनोमियल एंड कौन पोइनोमियल है कौन नहीं है। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सेंड द वीडियो टू द मैक्सिमम कॉन्टेक्ट। एंड उन पेरेंट्स को भेजे जिनके बच्चे 10th 11th 12th पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं वीडियो के साथ 10th का 11th का एंड 12th का लिंक भेजता हूं, जिससे कि वो 12th में पढ़ने वाला स्टूडेंट भी उसको वीडियो को देखकर आप खोल सकता है लिंक को, जो उसे क्लास चाहिए, 11th चाहिए 11th खोल सकता है। तो 10th 11th 12th तीनों के लिंक मैं वीडियो में भेज देता हूं, इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो के लिंक देखकर खोल सकते हैं। और उस एक क्लास के लिंक में उस क्लास का पूरा सिलेबस, एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस, ईच एंड एवरी एक्सरसाइज, each and every concept with proof of the formulas, everything clear, okay, तो वो देख सकते हैं हर एक क्लास का इसी तरह से। सिमिलरली 11th क्लास, सिमिलरली 12th क्लास, फुल सिलेबस, एवरीथिंग एनसीईआरटी। ओके, तो उनको पहले ये गाइड करना कि पहले आप सब्सक्राइब कर लें वीडियो को, तभी वो लिंक खुल पाएगा डिस्क्रिप्शन में जाकर, अदरवाइज वो लिंक नहीं खुलेगा। इसलिए बी केयरफुल अबाउट दिस कि सब्सक्राइब द चैनल एंड देन यू विल open the link which class you want, okay, and send the video to the next your friends and guide the same to the forward to whom you are sending the video, you guide them, okay, please the video को उनके पास जरूर शेयर करें जो ट्यूशन नहीं जा रहे हैं किसी भी कारण से, तो उनको बेनिफिट हो, मैं ये चाहता हूँ, मेरी इच्छा है। तो इसलिए आप वीडियो को उनके पास जरूर भेजें जो ट्यूशन नहीं जा रहे हैं, ठीक है। उनको गाइड करना कि डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो खुल जाएगी, पहले किसको, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, तभी वो लिंक खुलेगा, अदरवाइज नहीं। और उन्हें कहना कि वीडियो देखकर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू।